everyone, I'm Alka and you are watching Success Stories Talk Show presented by Trident Communication. Our guest for today is Alankrita Manvi. She's Reiki Grandmaster, past life therapist, tarot expert, astrologer, life coach, and subconscious mind healer. To know more about her journey of success, let's welcome Alankrita to our show. So, hello Alankrita ji, how are you? Thank you so much for joining us today, giving us your time for this show. Yeah. Thank you so much for inviting me, Alka. It's my pleasure being on your show. So, Alankrita ji, since you are an expert in tarot reading, so would you like to tell us something more about it? See, Alka, tarot card reading is the most accurate and most appropriate medium to seek a future guidance whenever you are in a fix or you need a answer to your confusion or you want a guidance. So they work as a guiding tool, and tarot cards are not just medium to know about your future. You can daily do affirmations like I do these special cards. These are called subconscious mind cards. Now, these cards work with your subconscious, and they basically correct your thought, deep down thought, negative thought, which has gone in your subconscious, which is affecting your life path. So basically, when once you correct that deep rooted thought, which may be coming from your childhood wounds or maybe coming from your past life, once you correct that thought, like some people think that they can never get success or they are not good enough to get success. Some people have negative thoughts regarding money. They think that money is the root cause of evil. So they are basically limiting themselves. So once we come to know that this is the thought in their subconscious, then we tell them to basically correct the thought, because the reading which I do and the healing which I do is basically it works with the healing which I do is basically more self healing, healing through your own thoughts, healing through your own hormones, healing through your own chakras, and healing through nature. So these cards are not just medium to know the future. There are daily helping affirmation cards, and they are actually very helpful, and they are basically medium to connect with the divine. They connect you so well with the higher power, and I just play the role of a mediator, and they connect you with the divine self and with your higher self. And also I have these Buddha tarot are based on the life of Buddha, basically on Buddhism, and they have very accurate results. And since there are very few people who do these Buddha tarot, for this you have to understand the Buddhism first, and then you the picture with that specific person's life, and you guide them. You relate the picture with your I relate the question I relate the picture with your question, and then give you the guidance. Yeah. Okay, so also as a part of your intro, we read that you know about Reiki and past life therapy and subconscious mind healing. So would you like to explain a little bit about all of those things? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अलका। हमने हीलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, और रीकी एक जापानीज हीलिंग है जो बहुत सालों से बहुत उपयोगी है, बहुत ज्यादा जो है ये हेल्पफुल है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, बल्कि सारी जितनी लिविंग एनर्जीज हैं हमारे आसपास। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मैं बहुत अच्छा एक ये रेलेवेंट बात सुन रही थी सदगुरु जी की, कि हमें लगता है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर इंसेक्ट्स हमारी धरती से चले जाएंगे तो 6 महीने में एवरीथिंग विल स्टैंड स्टिल। तो हर एक लिविंग बीइंग का अपना एक पार्ट होता है नेचर साइकिल में, और एक इम्पोर्टेंस होती है लाइफ की। तो रीकी एक ऐसी हीलिंग है जो सिर्फ ह्यूमंस को नहीं हील करती है, ये एनिमल्स को, प्लांट्स को, सबको हील करती है, क्योंकि ये आपकी
जो हाथों में फ्रीक्वेंसीज हैं, एनर्जी है, उससे हील करती है। और इसमें कुछ खास सिंबल्स होते हैं, जिन सिंबल्स को हम फ्रीक्वेंसीज में डिस्टेंस सिंबल है, जैसे सिंबल्स के साथ हम हील करते हैं, हम हैंड हीलिंग करते हैं, हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट 21 डेज का आपको एक साइकिल फॉलो करना होता है और रीकी को सीखना होता है। उसके बाद अपनी लाइफ में उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको अपनाना होता है। तो ये आपकी लाइफ में जो भी रिकी सीखता है, वो सबसे पहले सेल्फ हीलर बनता है। सेल्फ हीलिंग के बाद देन यू कैन हील ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग ऑन अर्थ। सो दैट्स द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल फुल पार्ट ऑफ दैट्स द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस हीलिंग व्हिच इज कॉल्ड रिकी। और रिकी के अलावा हम बात कर रहे थे, आपने पूछा पास्ट लाइफ थेरेपी की। तो जी। पास्ट लाइफ थेरेपी अगर वो तभी कारगर होती है जब आप उसमें यकीन करते हैं। बहुत से क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं, बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ ये चेक करने के लिए आते हैं या क्यूरियोसिटी से आते हैं कि पता नहीं, लेट्स सी कि क्या होता है। सो हम क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि अगर आपका फेथ है, अगर आपके अंदर आस्था है कि आप बिलीव करते हो कि पुनर्जन्म होता है या पास्ट लाइफ होती है, तभी आप विलिंग होते हो और अपनी पास्ट लाइफ को देख सकते हो। तो उसकी अपनी एक हमारे पास टेक्निक होती है, वो हम सीखते हैं। जब मैंने पास्ट लाइफ सीखी तो वो टेक्निक से आई कैन टेक अ क्लाइंट टू द पास्ट लाइफ। और पास्ट लाइफ में जाने के बाद उसका रीजन होना चाहिए। जैसे इस लाइफ में आपको कोई फोबिया है, किसी को क्लस्ट्रोफोबिया है, किसी को हाइट से फोबिया है, किसी को समझ नहीं आता कि उसको कोई स्पेसिफिक एंजाइटी क्यों रहती है। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले बचपन में लेके जाएं, देखें कुछ चाइल्डहुड वुंड तो नहीं है, कुछ चाइल्डहुड प्रॉब्लम से तो नहीं गुजरा इंसान। उसके बाद पास्ट लाइफ में जैसे किसी का वाटर एक्सीडेंट हुआ होता है, तो उसको देखा गया है कि उसको फिर नेक्स्ट लाइफ में भी पानी से फोबिया रहता है। या किसी का कोई बहुत नियर डियर का किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया होता है या कुछ इस तरह की कुछ मिसहैपनिंग हो गई होती है। तो जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें भी हम अपने फियर्स और फोबियाज कैरी करते हैं। लेकिन एक बार जब हम रियलाइज कर लेते हैं और हमें रियलाइजेशन हो जाती है कि ये हमारा जो सोल और सबकॉन्शियस है ये पास्ट लाइफ से लेकर आ रहा है, तो उसके बाद जो वो फोबिया है वो उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो हील भी हो जाते हैं। तो हम बेसिकली इसको हीलिंग और क्योर के लिए यूज करते हैं, फन या एक मिस्ट्री के लिए नहीं कि लेट्स सी कि मैं क्या था, मैं क्या थी। किसी को कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही, तब हम पास्ट लाइफ रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज हम सभी के अंदर हीलिंग पावर है। आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप सबके अंदर जो है वो सेल्फ हीलिंग है। और जैसे एक मदर के पास एक हीलिंग टच होता है अपने बच्चे के लिए। और जैसे आप बात करते हैं हमारे पुराने जो योगी थे या साईं बाबा जी की, गुरु नानक देव जी की, या जितने भी पुराने संत थे, उनका लिए कहा जाता है कि कोई रोता हुआ या कोई पीड़ित या किसी को घाव हो रहा है कहीं, उनके पास जाते थे तो वो हाथ ही रख देते थे, तो वो वूंड वहां पे ठीक हो जाता था या वो हील हो जाते थे। तो ये बेसिकली वो जो आपके अंदर या जो संतों के अंदर या जो योगी होते हैं और जिनके अंदर साइकिक एबिलिटीज होती हैं या पावर्स होती हैं या हाई फ्रिक्वेंसी पीपल होते हैं, तो उनके अंदर एक हीलिंग टच होता है। और वो अपने को तो हील करते ही हैं, अपने आसपास भी उनका आभा मंडल या उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि अपने आसपास के लोगों को भी हील करते हैं। और रिकी भी उसी तरह की एक साइंस है जो साइन से, सिंबल से, टच से हीलिंग देती है, हील करती है। जी। ओके। तो ये वैसे अगर देखा जाए तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट करियर पाथ एंड नॉट मोस्ट पीपल चूज इट। तो आपको इस प्रोफेशन में आपका आना कैसे हुआ, मतलब व्हाट गॉट यू इंटरेस्टेड हियर? अलका, दिस वाज माय ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो ये गॉड गिफ्ट था मुझे। जब आई डोंट नो कि मुझे खुद नहीं समझ में आता था कि मुझे जो ड्रीम्स थे मेरे वो ट्रू कैसे होते, मतलब ट्रू होते थे जनरली। या किसी को पूछना होता था कि हमारे बेटा होगा या बेटी होगी, या किसी को कुछ पूछना होता था, तो वो एक चाइल्डहुड एक जिसको कहते हैं ना सिक्स सेंस थी मेरे अंदर। बट आई नेवर थॉट दैट हम सभी के पेरेंट्स बहुत इस जो ये पाथ है, कोई भी नहीं चाहता कि
उसका बच्चा ज्योतिषी बने या ये बने, तो एवरीबडी इज लाइक सेम इन द सेम वे माय पेरेंट्स आल्सो वांटेड मी के आप मेडिकल स्ट्रीम ले लो या आप इस तरफ चले जाओ। बट समहाउ मैं बहुत छोटी थी, तभी से मैंने जो है वो लिंडा गुडमैन, बेजान दारूवाला, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमन आर फ्रॉम वीनस, ये किताबें मैंने 6th-7th क्लास से ही पढ़नी शुरू कर दी थी। और मुझे एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में, न्यूमरोलॉजी में और पास्ट लाइफ में, पैरानॉमी में बहुत क्यूरियस थी मैं और बचपन से ही पढ़ती रहती थी। तो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज इनबिल्ट एंड आई थिंक माय सोल इज कैरिंग दिस एंड दिस इज अ गॉड गिफ्ट। अभी भी कई बार मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि इट्स नॉट मी हु इज डूइंग इट। लाइक मेरे कोई डिस्टेंस से मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करते हैं and they ask and I can tell the color of their shirt and I can tell the what they're eating and how it comes I don't know. Even I have not the answer. मतलब मुझे ये पता है कि it is a God gift. It's a sixth sense. And बस later मैं पहले 8 साल मैंने चैनल में जॉब किया है। I was working with साधना चैनल and मैं उनकी साधना मीडिया अकेडमी की सीईओ रही हूँ for 8 years and after that मैं ऋषिकेश गई और ऋषिकेश जाने के बाद मैंने कोर्स किया वहां से विपस्सना का। तो उसमें बहुत मुश्किल कोर्स था क्योंकि उसमें 10 दिन बिल्कुल चुप रहना था। आपको 10 दिन तक बिल्कुल बात नहीं करनी थी। और मेरे जो मास्टर थे केवैन, ही वो मतलब वो यहाँ ही वाज अ फॉरेनर। तो ही गाइडेड कि व्हेन यू स्टॉप कम्युनिकेटिंग देन नेचर स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग विद यू। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं ऋषिकेश में 10 दिन बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए, सब मतलब चुप रहना। चुप रही, अंडरस्टैंड किया, मतलब फॉर फर्स्ट फ्यू डेज तो वो बोलते थे कि जस्ट विटनेस थिंग्स अराउंड। तो बहुत मुश्किल होता था कि बिल्कुल एक जगह पे बिल्कुल बैठना और ऑब्जर्व करना। तो इट वाज बट धीरे-धीरे फिर चीज़ें आसान होती गई और आई लैंडेड अप एट दिव्य प्रेम सेवा मिशन, एक बहुत ही सुंदर आश्रम है जो लेपर्स के जो लेप्रेसी पेशेंट्स हैं उनके बच्चों के साथ काम करता है। 25 साल हो गए उस आश्रम को। आई लैंडेड अप इन दैट आश्रम, वहाँ पे मैं उन बच्चों के साथ जुड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी हैज़ मोर टू डू विद द ह्यूमैनिटी। इट हैज़ मोर टू डू विद द रिचुअल से कम, बल्कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे कहते हैं कि प्यार माँगने से ज़्यादा देने के लिए बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिनको बहुत अभाव है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, ख़ासकर इंडिया में बहुत बहुत लोग जो हैं वो नीडी हैं। तो that way I started my spiritual journey and then I resigned from my job and I took this path of healing and I first started exploring the spiritual world। और अभी तक मैं बस ट्रैवल करती हूँ। मैं बहुत ट्रैवल, अभी मैं जैसे लास्ट मंथ आई वाज एट उज्जैन और मैं बहुत ज्यादा जो है ट्रैवलर हूँ मैं। और स्टिल आई एम एक्सप्लोरिंग द स्पिरिचुअल पाथ एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो अलंकृता जी, जैसे आपने बताया कि आप जब छोटी थी तो आपके पेरेंट्स वर नॉट सो मच इन फेवर ऑफ योर प्रोफेशन। सो बहुत लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा, जो आपके इंस्पिरेशन बने होंगे। सो इफ यू हैड टू मेंशन दोज पीपल, हु वुड दे बी? ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल बिकॉज़ हम लोग टीम के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू इवन थैंक्स माय पेरेंट्स बिकॉज़ उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अभी भी दे आर लुकिंग आफ्टर माय सन। जब मैं प्रोफेशनली बाहर हूँ तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मेरे बेटे के साथ। तो ऑफ कोर्स उनके उनको तो धन्यवाद बनता ही है, उनको उनके लिए ग्रैटिट्यूड बनता ही है। उसके साथ-साथ जो मैंने आपको बताया दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक हैं श्री आशीष गौतम जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इन माय लाइफ क्योंकि उन्होंने एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे कॉज़ के साथ काम करते हुए स्पिरिचुअल जर्नी अपनी की। तो आई और उनके उनके थ्रू मुझे क्रिया योग का पता चला, उनके थ्रू मुझे जो है अ, उनके थ्रू मुझे क्रिया योग का पता चला, उनके थ्रू मुझे महाअवतार बाबा जी के बारे में नॉलेज मिली। सो वो हैं और उनके साथ-साथ शंभू भैया हैं जिन्होंने मुझे अ, उनके साथ-साथ शंभू भैया हैं जिन्होंने मुझे प्राण विद्या सिखाई और बहुत चीज़ें लाइफ में सिखाई हैं। तो दे आर माय 2 गुरुज़।
उसके साथ-साथ बहुत सारे हमारी लाइफ में ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे इंस्पिरेशनल इंस्पिरेशनल लोग होते हैं, जो हमारी लाइफ में आते हैं तो हमें इंस्पायर करते हैं। और श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन जी रहे बहुत गाइडिंग एक मेंटर की तरह मेरी लाइफ में, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से देयर हिज सपोर्ट हैज़ ऑलवेज़ हेल्प्ड मी इन लाइफ। एंड उनके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, बहुत सारे लोग हैं, मेरे जय भैया हैं और बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में एक सपोर्ट की तरह खड़े रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। Okay, so that was all about your support and inspiration. But and as you said earlier that when you were a kid, तो आपको सपने आते थे and then those things would come true. So any major prediction जो आपने की हो और फिर वो सच हो गई हो, ऐसी कोई केस, ऐसा कोई स्टोरी रही है आपके साथ? हाँ, वो जो पार्ट था वो कुछ हद तक पॉजिटिव भी था, बट बहुत हद तक मेरे लिए बहुत थोड़ा-सा मुश्किल भी रहा, क्योंकि मैं पहले से अपनी मदर को बता देती थी कि फैमिली में कुछ ऐसा होने वाला है, या कोई कोई बुरा हादसा भी अगर होने वाला हो तो उसके 1-2 साल पहले ही मुझे ड्रीम आ जाता था। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, लाइक एक मेरे बहुत क्लोज़ कज़िन था जो उम, बाद में फिर यूएस में उसकी एक्सीडेंट से डेथ हुई, तो कुछ ना कुछ, मतलब आई यूज्ड टू प्रेडिक्ट माय मदर कि आई थिंक उसको हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत पॉज़िटिव ड्रीम्स नहीं आ रहे हैं उसके बारे में। एंड देन दिस थिंग हैपेंड। तो ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं, फैमिली में बहुत सारे हैं, जो मैं पहले से ही प्रेडिक्ट कर देती हूँ कि ये बीमार होने वाला है या इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और लाइकवाइज़ मतलब अब उसका कोई उस टाइम पे, बिकॉज़ व्हेन आई वाज़ अ किड, तो मुझे अपने आस-पास की सराउंडिंग्स के ही ड्रीम्स आते थे। अब बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऐसी हैं, जैसे मैंने न्यूज़पेपर में बहुत सारी प्रेडिक्शंस अपनी ऐसी दी हैं, जो 2017 में जब इलेक्शंस थे, तो इलेक्शन प्रेडिक्शंस मेरी 100% करेक्ट गई थी बिल्कुल। और अब जैसे ये पैंडेमिक है, इसके बारे में भी कुछ साल पहले ही आई प्रेडिक्टेड, बट ये प्रेडिक्शंस अब ट्रू हो रही हैं, लेकिन चाइल्डहुड में फैमिली और सराउंडिंग्स में जो प्रेडिक्शंस, मतलब जो मैं ड्रीम्स देखती थी, वो बिल्कुल, वो मूवी आई थी 100 डेज़, बिल्कुल वैसे ही रहता था, बट मैं बहुत परेशान भी रहती थी कि अब कई बार होता है हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं वो प्रेडिक्टिव नहीं होते, वो वेंटिंग ड्रीम्स होते हैं। वेंटिंग ड्रीम्स आर दोज़ ड्रीम्स व्हिच are the fears in our mind, and they went out through our venting dreams. But uh, sometimes I used to consider those dreams also कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा. So that was a little, because बहुत सारी क्लैरिवोयंस होता है कि बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो कोई और नहीं महसूस कर सकता, आप उन्हें जब महसूस करने लगते हो, तो वो कई बार सफोकेटिंग भी हो जाता है, बिकॉज़ देन यू कम टू नो बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता होनी चाहिए। सो वो एक पार्ट था उसका, थोड़ा-सा नेगेटिव इन द चाइल्डहुड, बट देन नाउ आई हैव लर्न्ड टू डेल विद इट। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि पास्ट लाइफ थेरेपी एंड हीलिंग इज नॉट समथिंग दैट यू रिकमेंड एवरीवन, सो डू यू रिकमेंड टैरो रीडिंग टू एवरीवन और आर देयर एनी मिसकंसेप्शंस अबाउट इट? Tarot reading I would recommend to everyone, because they are the easiest and they are the best tools to seek the divine guidance. And they are very easy also. And one can learn it at home, and you can do it yourself also at home after learning it. So whenever you are in a fix, whenever you want some answer, instead of considering human guidance or a friend's guidance, you can always take the guidance of cards, because they never lie. मेरी लाइफ में तो आज तक इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है। कई बार मैं डरती भी हूँ कि कुछ नेगेटिव आंसर आ गया तो मैं पहले से ही डिस्करेज हो जाऊँगी। बट दे हैव ऑलवेज गाइडेड मी परफेक्ट, बिकॉज़ इट इज़ more of a Alka, when you are on a journey of सरेंडरिंग की हमारे से ऊपर भी एक ताकत है, और हमें जो है वो डिवाइन चला रहा है, और डिवाइन पे जो जब आस्था होती है, तो टैरोट जो है वो बहुत आसान मीडियम है, क्योंकि कार्ड्स को आप पूछते हो, वो आपको
पिक्चर्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से वो आपको डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट करता है और आपको आंसर्स देता है। मैं आंसर नहीं देती हूँ, ये कार्ड्स आंसर देते हैं। जी। Can we have a demo for our viewers of how this works? Yeah, sure. Like if you have a question, then you can ask me a question. अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ आप मुझे, और क्वेश्चन बताओ, I will tell you how they work. Okay, so if I take it for any of my like friends or something, is that fine? You can take it for yourself also. You just tell me your date of birth and ask a question, and I will guide you. Okay, so the date of birth is 23rd March 2000. 23rd March 2000. 2000. So you are number 5 born, which is a Yeah, Mercury number. So yeah. you are a very friendly and well-adjusted person who adjusts with people very easily. But sometimes there are a lot of dreams and a lot of things in your head which you still need to accomplish. So what is your question in your mind? That now that I'm like towards the end of my graduation, so I just wanted to ask that how long will it take for me to settle down in life? Okay, settle down in terms of what? In terms of Like career? getting a job and yeah, Okay. So I will ask, like tarot में इसको मैं ऐसे पूछूंगी. What is your full name, Alka? Patel. Alka Patel. I will ask Alka Patel, born on 23rd March 2000. Sorry, you're too young. Alka Patel, born on 23rd March 2000 at which At place? Sundargarh, Odisha. At Odisha. Be as accurate as it can be. And then I will spread them like this. ऐसे मैं इनको spread करूंगी. Okay. And then I will do my this healing bell. कार्ड्स बताइए अलका पटेल का करियर. हाउ विल बी द करियर ऑफ अलका पटेल? देखो, अब जो आपके कार्ड्स आए हैं अलका, ये पहला कार्ड आया आपका फाइव Right. सरमन्स. 5 sermons मीन्स बहुत ज्यादा लर्निंग और टीचिंग और लर्निंग आपकी लाइफ में थ्रू आउट रहेगी. एंड Okay. टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में आप अभी भी हो. Yeah. एंड दिस प्रोसेस विल लीड यू टू द हॉर्स और ज्वेल कार्ड का मतलब ये है कि कहीं बाहर जाके भी आपका जॉब का अच्छा ऑप्शन बनेगा आपके होम प्लेस से बाहर. Okay. जॉब आपकी रहेगी आपके होम प्लेस से बाहर, और आपका लाइफ में स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी रहेगा, ये कार्ड ये बता रहा है. और उसके साथ साथ देयर विल बी सम टेम्परेस हु इज गोइंग टू हेल्प यू. यानी कि जितना ज्यादा आप फीमेल गॉडेसेस को मानेंगे, जैसे माँ दुर्गा को, माँ काली को, उतना ज्यादा आपको जो है फेमिनिन एनर्जी हेल्प करेगी टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स. All right. Okay. सो दिस इज हाउ Thank वी you. डू द कार्ड्स. या Yeah. तो So ऐसे I ही guess हम the बड़े. viewers will also have an idea of how it works and they'll be trying यस. it out soon. Yeah. So now that we have come so far, so doing a lot of things, how do you balance your personal and professional life? It becomes a little tough, but it is about the priorities. What is more important for you? If your priority, and I think it's always like uh, initially when you make a base, so thoda sa you have to give more time to, of course, to you have to balance out basically, but you have to give a time to your profession. But once things are, जब आपका एक base बन जाता है, when things are on the right path, then you know that of course you have responsibilities which are equally important. And but फिर भी बहुत मुश्किल होता है. कई लोगों के लिए आसान हो जाता है. Some people are very easy in maintaining the balance. But for me, अगर if I'm into something, then मैं फिर time भूल जाती हूँ. Then I'm actually into it. Then मुझे फिर घर वालों को फोन करके या my father or somebody will give me a reminder के come back that way. So, but it's always good to create a balance. But I hope I will learn it someday. Okay. So other than tarot reading, what are your hobbies and passions?
सो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और ट्रैवल करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी टू पैक माय बैग्स एंड जस्ट गो एंड ट्रैवल। सिंस आई एम अ फिल्म स्टूडेंट तो मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। मेरे फ़ोन में भी और मेरे जो कैमरा है, उसमें भी कई हज़ार फ़ोटोज़ रहती हैं। आई लव टू क्लिक फ़ोटोज़ ऑफ एवरी मोमेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे डांसिंग और कुकिंग का बहुत शौक है। अभी जैसे कुछ गेस्ट्स आए हुए थे अभी आपके शो से पहले ही और I cooked food for them. That's another passion of mine. Or that's it. So, if you had to define women empowerment, what would be true women empowerment for you? I think बहुत कम है मतलब वो कहते हैं ना कि हर गली हर नुक्कड़ में जो है वो कहीं न कहीं स्पेशली इंडिया में हमारे देश में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जो है वो औरतों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, औरतों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज़ इफ दे आर कैपेबल, इफ दे आर एम्पावर्ड तो उनके साथ-साथ उनकी पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होती है बिकॉज़ दे आर द वन्स हू गोइंग टू एंड ऑफ कोर्स कुछ एक वर्ग ही हमारे यहाँ पे है जो एम्पावर्ड है। उसके अलावा जो रूरल एरियाज़ में जो औरतें हैं, स्पेशली गाँव में, देहात में, उन लोगों की लाइफ़ की प्रायोरिटीज़, उन लोगों की लाइफ़ जो है वो अ बहुत-बहुत अभी उनको सीखना, उनको आगे बढ़ना, उनको डेवलप होना, उनके राइट्स के बारे में उनको नॉलेज होना, वो ही नहीं है। मतलब एक बेसिक एजुकेशन नहीं है। आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम एजुकेशन एंड देन इट एंड्स टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो अगर औरतों के पास होगी या किसी तरह से वो सक्षम होंगी और आत्मनिर्भर होंगी, तभी जो है वो देश का असली विकास होगा। क्योंकि और नारी से ही जो है वो शुरुआत होती है एक परिवार की। तो और हमारे यहाँ पे बहुत कम रेशो है जहाँ पे औरतें एक्चुअली में एम्पावर्ड हैं। जो हैं उनको अपने साथ-साथ कोशिश करनी चाहिए कि कई और औरतों को एम्पावर करें, खासकर जो हमारे जो वर्ग जो जैसे अब हमारे घर पे जो स्पेशली वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द पीपल हू कम टू वर्क एट आवर प्लेस। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे हम उन्हें सक्षम बना सकते हैं। अभी मैं आपको कल का ही एक इंसिडेंट बताती हूँ कि अ, मैंने एक नई मेड रखी, तो वो ज्योति नाम था उसका बच्ची का। तो शी वांटेड टू लर्न साइकिल। तो आई टोल्ड हर कि आई हैव अ साइकिल और मैंने स्पेशली उसको 2 दिन लगा के साइकिल सिखाई। तो जब वो सीख गई उसको चलाना और वो इंडिपेंडेंटली चला रही थी और मतलब ये एक आपको एग्जांपल है कि इट स्टार्ट्स वहाँ से जो वर्ग जो है वो जो अ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और जो गाँव देहात है, वहाँ से हम औरतों को शिक्षित करना, औरतों को अ, उनके बेसिक राइट्स की नॉलेज देना और उसके बाद उनको आत्मनिर्भर करना शुरू करेंगे, तभी वो एक्चुअली में पूरे देश का विकास शुरू ही वहीं से होगा। That's a nice thought. And since we know that you're also a social activist, so what all things do you do to bring a social change? सीएल का आई फील दैट बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बदलाव हैं, जैसे कि हमने औरतों के बारे में बात की, तो शुरुआत हमारे घर से ही होती है। हमारे घर पे बहुत जो हमारे साथ मिलके काम करवाते हैं, वहाँ से ही हम शुरुआत करें तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, वो चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम वाली बात है। चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम वाली बात है कि हम लोग अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं सोसाइटी में जिनमें हम खुद बढ़ के अगर जो है कंट्रीब्यूट करके अगर चेंज ला सकते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो जैसे मैंने आपको बताया दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़ के, आशीष भैया से जुड़ के मैंने बहुत कुछ सीखा है और मतलब ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उन बच्चों के साथ खुद भी सीख पाई, उनको कुछ सिखा के और उनके साथ-साथ जैसे हम लोग भी
कीप वर्किंग फॉर एनवायरनमेंट, हम पेड़ लगाते हैं, हम जो है वो क्लीनलीनेस के लिए वर्क करते हैं। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक हम लोगों ने थ्रू आउट साथ मतलब ये जो थ्रू आउट हमने जो है वो भोजन वितरण यानी खा मतलब कॉन्स्टेंटली हमने खाना बाँटने का काम किया। हमने बहुत सारे जो बच्चे थे जो उस वक़्त नहीं मतलब भूखे थे, परेशान थे और बहुत सारे इस तरह नहीं, दोबारा से तो उसके साथ-साथ अभी मैं खुद बहुत कुछ अभी करना बाकी है और इसके साथ-साथ बहुत सारे पोर्टल्स हैं ऐसे, जहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं कुछ इनजस्टिस हो रहा है, आई ऑलवेज़ रेज़ माय वॉइस फॉर इट। आई ऑलवेज़ स्टैंड फॉर इट और वो चाहे मेरी अपनी सोसाइटीज़ में हो या मेरे आस-पास मुझे वो दिख रहा हो तो मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं इंडिया न्यूज़ के पोर्टल से भी जुड़ी हुई हूँ। देन आई ऑलवेज़ ट्राई टू रेज़ माय वॉइस एंड डील विद इट जितना हो सके। बहुत सारा इनजस्टिस है हमारे देश में, जो हर गली नुक्कड़ कॉर्नर पे आपको मिल जाता है। पीपल डोंट गेट जस्टिस एंड जितना हम कर सकते हैं और जो जो हमारे जितना हम कर सकते हैं या जितना हमारे बस में है, उतनी मैं कोशिश करती हूँ दैट आई शुड रेज़ माय वॉइस, आई शुड इन्वॉल्व मायसेल्फ इन दिस मिशन व्हिच आई एम इनटू, दिव्य प्रेम सेवा मिशन। से बस उतना ही, बाकी कोशिश जारी है कि और भी करना है, बहुत कुछ करना है। That's a really nice thought. And yes, drop makes an ocean, so that's हुँ, fine. हुँ। So, with the last question, since this episode is already towards the end, and as the name of the show is Success Stories, so if you had to define success, what would be the definition? I think if you're happy with yourself, if you feel satisfied with whatever you're doing in life, it starts from you. And at the end, because आपको जो है वो अपने आप को खुद को जवाब देना है. When you sleep, you have to answer yourself. And if you think that you're doing good enough, and जो आप if you have taken birth as a human, और आप जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ ह्यूमन, आप वो कर पा रहे हैं या आपको लगता है कि आपने ठीक है, आप अपने आप को ओवररेट मत करिए, बट एट द एंड अगर आप खुद से खुश हैं, खुद से नाराज नहीं है, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर मी। दैट इज अ सक्सेसफुल पर्सन जो संतुष्ट है, अपने खुद से संतुष्ट है या अपने आसपास वालों को संतुष्ट रख रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने घर में, परिवार में, और वो कंट्रीब्यूशन चाहे छोटी बड़ी कितनी भी हो, but some way the person is contributing is That's right. a successful So, person. yeah, that definition is such a short, sweet, and something that everyone needs to learn. That if it makes you happy and it makes you satisfied in at the end, so you're successful. And of course, you have to then create a balance between your social, personal, spiritual, emotional, physical, all sort of lives, and of course, your professional and your family life. If you create a good balance between everything, and then you come up as a happy, healthy person who's helping enough, is successful. Thank you so much for such a nice definition. Yeah. So, as we are towards the end of today's episode, so we would want one last message for our viewers from you. One message which I would like to give is this, that accept yourself the way you are. आप जो हैं, जैसे हैं, जितना कर पाए हैं ज़िंदगी में, उसे पहले स्वीकारिए और then move forward. Acceptance is very important. And I'm a firm believer of divine energy frequencies. So have faith, and everything starts from a thought. So always keep a check on your thoughts and just keep going. Just keep going with the flow of life. Yes. Live and let live. Thank you so much, Alankrita ji, for this wonderful message for the viewers. And I hope that they will listen to it and they will abide by it and they'll follow it.
And thank you so much for joining us today and giving us your precious time for this episode of Success Stories. Thank you so much, Alka. It's lovely speaking to you and sharing my thoughts with everyone around. Thank you so much. Thank you. And thank you so much, guys, for joining us today for this episode of Success Stories. And for more such stories, stay tuned every Monday, Wednesday, and Friday. Till then, stay safe. Bye bye.